My dear friends, we live in dangerous times. मेरे प्रिय मित्रों, हम आज एक बहुत ही भयानक समय में जी रहे हैं। Now, the commonest word that we hear is the term called corona. आज हम एक बहुत ही सामान्य एक शब्द जो सुन रहे हैं, कॉमन एक शब्द जो सुन रहे हैं, वो है कोरोना। And the other thing, the emotion that is associated with corona is fear and death. और जो कोरोना के साथ में जो भावनाएं जो जुड़ी हुई है लोगों की, वो है एक डर, भय और मृत्यु। Look at this. Have any of you seen corona? Nobody has seen it, but still everybody fears the enemy called corona. देखिए, जब आप कहते हैं देखते हैं कोरोना, कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन सब लोगों के दिल में उसके प्रति डर है। Why is it so? Because corona is an invisible enemy. It is a virus. क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एक अदृश्य शत्रु है हमारा, वायरस के रूप में, एक विषाणु के रूप में। And it is a common enemy for the whole of mankind. Right now, that enemy, corona, is spreading in every nation of the world, and thousands of people are already they are dead, unfortunately, because of this deadly disease, coronavirus. इस कॉमन कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के देश जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि हजारों लोग इसकी वजह से मृत्यु को भी प्राप्त हो गए हैं। Look at the power of this so-called enemy, that is coronavirus. The whole world is in lockdown. देखिए, इस कोरोना वायरस के सो कॉल्ड कोरोना वायरस की वजह से आज सब लोगों को लॉकडाउन होना पड़ रहा है। Look at this. Even kings, presidents, prime ministers, and ordinary people are all in lockdown. देखिए, राजा हो चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, चाहे कितने भी बड़े तबके के लोग हों, उन्हें आज इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन होना पड़ रहा है, उन्हें अपने घरों में बंद रहना पड़ रहा है। Even sports stars, film stars, celebrities, preachers, pastors, believers, non-believers, everybody is in lockdown. यहाँ तक कि जो फिल्मी सितारे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें भी इससे प्रभावित होना पड़ रहा है, वो भी इससे प्रभावित है इस लॉकडाउन से। Look at this. The healthy are in lockdown. The sick are in lockdown. The white people are in lockdown. The black people are in lockdown. The brown, the yellow, everybody is in lockdown. Entire humanity is in lockdown. देखिए, अमीर भी इस लॉकडाउन में है, गरीब भी लॉकडाउन में है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे किसी भी रंग, भाषा, भेद का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आज इस लॉकडाउन के अंतर्गत आ गया है। You might be a billionaire or a millionaire or an ordinary person or a middle class person or even a pauper. Still, you all fear this enemy, corona. आप चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, चाहे आप एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे आप एक पॉपर हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी चाहे कोई भी पहचान क्यों ना रही हो, आज आप इस कोरोना के लॉकडाउन के अंतर्गत आ गए हैं। Why are you fearful? Because corona is known to kill people. आप इस भय में क्यों हैं? क्योंकि इस कोरोना की वजह से कई लोग इसके अंतर्गत इससे प्रभावित हुए, यहाँ तक कि Look at this. More than 10,000 people, they lost their lives in Italy. Maybe thousands of people lost their lives in Spain.
maybe thousands of people lost their lives in China, Iran, USA. Then so many people are dying, even in India and so many other nations of the world. Why is this happening? देखिए, 10,000 से ज्यादा लोग इटली में, हजारों लोग स्पेन में, अमेरिका में, ईरान में, चाइना में और भी बहुत से देशों में लोग इस कोरोना की वजह से मारे गए हैं। My dear friend, maybe even you are fearful. You are fearful. What will happen to me? Will I die? Is that your biggest fear? हो सकता है कि आप भी इसकी वजह से भयभीत हो, आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि क्या मैं भी इस कोरोना से मर जाऊंगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। My dear friend, in the Bible, one word is repeated so many times, and the word is fear not. मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर एक ही वचन कई बार लिखा गया है हमारे लिए, और वो है डरो मत, भयभीत मत हो, डरो मत। Fear not, fear not, fear not. डरो मत, डरो मत, डरो मत। I have a promise verse for you. If you look in Psalms 118th chapter, verse 17, you will read like this: I shall not die, but live and declare the works of the Lord. मेरे पास आपके लिए पवित्र शास्त्र से एक वचन है, एक वादा है परमेश्वर का किया हुआ, जो कि हमसे कहता है, भजन संहिता 118 उसका 17 वचन, कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। Yes, my dear friend, Jesus, he has one word for you. You shall not die, but live and declare the works of the Lord. Are you हाँ मेरे ready प्रिय to भाइयों, work? हाँ मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह के पास आपके लिए एक वचन है, एक वाचा है, और वो कहते हैं कि तू ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। Look at this. Wherever Jesus went, wherever people were sick, he healed them all. जहां कहीं भी यीशु मसीह गए, जहां कहीं भी लोग बीमार थे, उन्होंने बीमारों को चंगा किया और परेशान लोगों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया। Look at this. The same God who opened blind eyes, who made the deaf hear, who made the mute speak, who made the lame walk, and who made the lepers cleansed, and who made the paralyzed take their bed and walk. He is still alive and well. देखिए, मेरा परमेश्वर जिसने अंधों को दृष्टि दी है, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, यहाँ तक कि लकवे के रोगियों को चलाया, जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा किया, वही हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। Yes. The same God who resurrected Lazarus from the dead, he is alive and well. The same God who himself resurrected from the 3-day lockdown in that tomb. Jesus Christ rose again from the tomb after 3 days. He is your God. देखिए, जैसे यीशु मसीह 3 दिन तक, जैसे नूह मछली के पेट में 3 दिन तक रहा, उसी रीति से हम लॉकडाउन हैं। Yes, the same God who came out of that lockdown, he is more than willing to help you come out victorious from this lockdown. वही हमारा जीवित परमेश्वर आज हमें बाहर निकालना चाहता है और इस लॉकडाउन से विजयी होकर बाहर आए। You know, in the Bible there are some famous lockdowns. आपको पता है Noah बाइबल was के अंदर, locked down. आपको पता है बाइबल में बहुत सारी जगह पर इस तरह के लॉकडाउन दर्शाए गए हैं, जैसे नूह लॉकडाउन में था 3 दिन के लिए।
No, Noah was under lockdown for 40 days and 40 nights in the ark. जैसे नूह 40 दिन और 40 रात तक उस जहाज के अंदर बंद था। And look at this, who locked the door of the ark? It was God who locked him down with his family. और देखिए उस जो जहाज है उसके दरवाजे को किसने बंद किया? परमेश्वर ने, जो सृष्टि का कर्ता है, उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। In those times there was so much sin in the world and God was looking for a righteous man and he found Noah. उस समय में जब लोगों का पाप बहुत बढ़ गया, परमेश्वर ने एक धर्मी, एक सच्चा मनुष्य ढूंढा और उन्होंने पाया कि वह नूह है। He asked Noah to build an ark and he gave him the exact measurements and how to build it. And similarly, Noah began to preach. He preached that people should repent from their sins and told that God told him that there is going to come something called rain. और देखिए नूह जिसको परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा जहाज बनना, और परमेश्वर ने उसको पूरा उसका माप बताया और किस रीति से बनाना है उसे परमेश्वर ने बताया, और नूह ने उनकी आज्ञा का पालन करके लोगों को इसका प्रचार किया कि अपने पापों से अंगीकार करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर कुछ विपत्ति लाने जा रहा है जिसको कि वो बारिश के रूप में लेकर आएगा। Look at that. Till that time, there was no rain on the earth. And so people did not believe it because the so-called rain was invisible. Just like Corona is invisible now. देखिए उस समय में बारिश का आना बिल्कुल असंभव था क्योंकि लोगों ने उसे कभी देखा ही नहीं था। बिल्कुल बारिश उनके लिए ऐसी थी जैसे अदृश्य शक्ति, जैसे आज हमारे लिए कोरोना वायरस है। Yes, you know, look at this. Look at this. So just as in those days, Noah, he was preaching his heart out, saying that repent, turn back to God, look, enter this ark, you will be saved. But nobody listened to him. People thought that he was mad. देखिए अब यहाँ पर देखिए आप, परमेश्वर ने जो कहा नूह ने उसका प्रचार किया भारी दिल के साथ कि अपने मनों को परमेश्वर के प्रति खोलो, पश्चाताप करो अपने पापों से और उस जहाज के अंदर आ जाओ। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना और उसको नकार दिया। Then finally one day that invisible enemy called rain came. So before that, God asked Noah and his family, just 8 people, to be in that ark, and God locked it down. और देखिए उसी समय जब बारिश आई उसके पहले परमेश्वर ने उन 8 लोगों को जो नूह के परिवार में थे उन्हें कहा अपने आप को इस जहाज में बंद कर लो, और वही अदृश्य शत्रु जिसका नाम उस समय में बारिश था वो आने पर था। Look at this. Now we in a similar situation now. अब देखिए हम बिल्कुल उसी परिस्थिति के अंदर आज हम खड़े हैं। Look at this. There were so many preachers, so many men of God who spent all their time preaching about Jesus Christ, saying that repent, turn back to Jesus. People all thought that they were mad, but now look at this. An invisible enemy called Corona is causing fear in their life. Fear, absolute fear. वही चीज आज हमारे सामने हो रही है। परमेश्वर ने कहा था कि मन फिराओ, आज हमारे वही प्रचारक, परमेश्वर के जन, प्रभु के दास, प्रभु के बच्चे लोगों को प्रचार कर करके थक गए। मन फिराओ, प्रभु की ओर अपने को मोड़ो, प्रभु की ओर मुड़ो, लेकिन किसी ने भी उनकी ना सुनी, और आज उन लोगों के सामने वो अदृश्य शत्रु जिसका नाम कोरोना है वो आकर खड़ा हो चुका है।
My dear friends, initially I told you about the present enemy called invisible enemy called Corona. Then I told and the lockdown because of Corona. मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था इस मैसेज के पहले, संदेश के पहले, कि हमारा एक शत्रु है जो कि अदृश्य शत्रु है और उसका नाम है कोरोना. Then secondly, I told about the 40-day and 40-night lockdown where Noah was and his family were locked up in that ark. और फिर मैंने आपको बताया कि वहां पर 40 दिन और 40 रात नूह ने अपने आप को उस जहाज के अंदर परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा बंद कर ली. Then I am telling you about Jesus Christ. We, 2000 years ago at the cross of Calvary, he was crucified, he was dead, and he was buried in a tomb. और देखिए 2000 साल पहले वो हमारा यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से, उस कब्र में से जी उठा. Yes, he was kept in a tomb for 3 days, and the soldiers, they rolled a big stone and covered it, and the Roman imperial seal was placed on it, and his body was in lockdown. और देखिए वो यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, लोगों ने, जो बहुत बड़े याजक थे, महायाजकों ने, यहाँ तक कि रोमी शासकों ने यीशु मसीह की देह को उसकी कब्र में दफना दिया और उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काकर उस पर एक सील लगवा दी ताकि उसको कोई खोल ना सके. But on the third day, an angel came and rolled the stone away. And what happened? Jesus Christ, he rose again from the dead. He was resurrected from the dead. और देखिए फिर तीसरे दिन क्या हुआ. परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतर कर आया और उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया और यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं, उन्होंने अपनी महिमा को प्राप्त किया और वो रिजरेक्ट हो गए, वहां पर मुर्दों में से जी उठे. Yes, that 3-day lockdown was broken by the resurrection power of Jesus Christ. और देखिए वो 3 दिन का लॉकडाउन यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तोड़ दिया गया. My dear friend, now look at the case of Jonah. और मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, आज हम देखते हैं योना की जो कहानी है, योना का जो केस है, योना की जो बातें हैं, उसकी कहानी को आज हम देखते हैं. He was asked to go to a particular place, but he was so smart that he went his own way. देखिए उसको परमेश्वर ने एक जगह जाने के लिए बोला, लेकिन उसने बहुत बुद्धिमानी से अपने आप को दूसरी जगह पर भेजने का निर्णय, और वो दूसरी जगह चला गया. But what happened? God threw him out from the ship that he was going, and he landed in the ocean. और देखिए जब उसने ऐसा करना चाहा, परमेश्वर ने उसे उस जहाज में से निकालकर समंदर में फेंक दिया. Jonah thought this was the end, but God had preordained a present day submarine, or you can call it a big whale. He came and swallowed Jonah. और देखिए योना नबी ने उस दिन सोचा आज का दिन अंत है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही ठहराए हुए समय के अनुसार उसके पास कुछ भेजा, जो कि एक बहुत बड़ी मछली थी जिसने उसे निगल लिया. Had a 3-day lockdown in the belly of that big fish. क्या आप जानते हैं 3 दिन तक उस बड़ी मछली के पेट में रहा. Jonah was योना yes. वो जो अंदर Jonah था, was in the belly of the big fish for 3 days in that lockdown period. और योना नबी 3 दिन तक उस बड़ी मछली के पेट में था, एक लॉकडाउन की तरह. Maybe Jonah would have declared a fasting prayer
for 3 days. Finally, the prayer was answered, and the big fish spat him down on the shore of the place that he had to go. और देखिए, हो सकता है योना ने 3 दिन और रात उपवास करने का निर्णय लिया हो, और वो तीसरे दिन जब उसका उपवास पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उस मछली ने योना नबी को उस समुद्र के तट पर फेंक दिया जहां पर से उसको अपने नियत स्थान पर जाना था। My dear friend, maybe you have taken the wrong destination. Maybe you have gone far from God, but this invisible enemy called Corona has brought you back to your knees. And now maybe you are fasting and praying. Just like Jonah, maybe now you are also fasting and praying. And maybe you went the wrong way. Now you are turning back to God. All because of this invisible enemy, coronavirus. और देखिए, हो सकता है कि आप परमेश्वर से कहीं दूर निकल गए और आपकी ये 3 दिन की उपवास प्रार्थना आपको बहुत दूर लगती है, लेकिन परमेश्वर का जवाब, ये जो कोरोना वायरस है, ये आपको परमेश्वर के करीब लेकर आ सकता है। So look at the lockdowns that we are talking about. So अब देखिए, हम जिस लॉकडाउन के बारे में अभी तक बात कर रहे थे, There is one more thing that I would want to say. Now, यहाँ पर एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। There was another big enemy just like Corona, and the name of that Corona was Goliath. अब देखिए, यहाँ पर जो एक बड़ा शत्रु है कोरोना, वो हमें पवित्र शास्त्र के एक बड़े शत्रु की तरह दिखता है, जिसका नाम है गोलियत। Look at this big enemy, this big giant called Corona. This giant called Goliath. He came and he threatened the armies of Israel for 40 days and 40 nights. देखिए, ये जो बड़ा शत्रु है, एक बड़ा दानव है, वो जो इजरायलियों की बड़ी सेना को 40 दिन और 40 रात तक डराता और धमकाता रहा। Daily twice he came and threatened them that I will kill you. दिन में हर बार 2 बार वो उनको डराता था, वो कहता था, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। Look at this. In one side, all the armies of Israel were there. On the other side, all the Philistine army was there. देखिए, एक तरफ पूरी इजराइल की सेना है, एक तरफ पूरी फिलिस्तियों की सेना है। Yes, it was a siege, or you can say it was a 40-day lockdown at the border. देखिए, अब ये एक सीज या एक बंधन हो सकता है कि 40 दिन और 40 रात का युद्ध था और वो बंधन था। Just like you all fear Corona now, at that time even King Saul was fearful. Even his whole army trembled seeing Goliath. देखिए, जैसा कि आज आप घबरा रहे हैं इस कोरोना की वजह से, उसी समय पर बाइबल के अनुसार वो जो राजा था शाऊल, वो भी गोलियत से घबरा रहा था। यहाँ तक कि उसकी जो पूरी सेना, इतनी प्रभावशाली शक्तिशाली सेना थी, वो भी उस गोलियत की वजह से थरथराने लग गई, डरने लग गई। But in that 40-day lockdown, a small shepherd boy called David came to give food to his brothers who are in the army. और देखिए, उस 40 दिन के लॉकडाउन के अंदर एक छोटा सा चरवाहा, दाऊद नाम का छोटा सा बच्चा, अपने भाइयों को उस युद्ध के अंदर खाना देने के लिए पहुंचा। Well, this guy, he did not care how big the enemy was. He did not think that, look how big Goliath is. He did not even, just like you are saying, he did not say how big Corona is.
but instead he focused on his God. अब देखिए, वो जो छोटा सा लड़का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां क्या हो रहा है। गोलियत कितना बड़ा था, वो कितना बड़ा दानव था, कितना खतरनाक था, उसको सिर्फ एक ही बात पता थी, और वो था मेरा परमेश्वर महान है। उसका पूरा ध्यान अपने परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। Look at this. What was different in that small boy? अब देखिए यहाँ पर क्या अंतर है उन लोगों में और इस छोटे से बच्चे में। The Spirit of the Lord was in him, was upon him. He was anointed to be a king. But now this was his opportunity to beat the greatest enemy that Israel had ever faced. देखिए, अभी ये छोटा सा जो बच्चा है, ये वास्तव में अभिषेक किया गया था एक राजा होने के लिए, लेकिन अभी इसको एक बहुत बड़े शत्रु को मारना था। What did David say to Goliath? He said, if you read in 1 Samuel chapter 17 verse 26 second part, it says that, for who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? और देखिए यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन बताता है, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 26 वचन, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इजरायली के नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह है कि जो उसे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। Look at that. This small boy used an unconventional weapon in that war. He used just a sling and a stone to floor the mighty giant Goliath. अब देखिए वहां उस छोटे से बच्चे ने क्या किया। उसने कोई बड़ा कुछ नहीं सोचा, उसने एक छोटा सा अपना गोलियत वो लिया और 5 पत्थर लिए। उसने अपना गोफन लिया और 5 पत्थरों को अपने हाथ में लिया। And he launched one stone and it hit the forehead of Goliath and he fell down flat. और देखिए उसने क्या किया, उन 5 पत्थरों में से एक पत्थर को लिया और गोलियत के सिर के बीचों बीच मारा और गोलियत को उसी जगह पर धराशायी करके पटक दिया। Yes, my dear friend. Similarly, today your enemy might be Corona. हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज हो सकता है आपके लिए वही कोरोना है। Now the scientists, they are doing their very best to find the vaccine. The doctors are doing the utmost best to save the lives of people. Nurses, paramedics, they are doing their best. Governments are trying to keep the law and order in control. देखिए आज जो वैज्ञानिक है, आज इस कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हैं। डॉक्टर्स जितना बन सकता है अपने सफल प्रयासों को कर रहे हैं कि लोगों को बचाया जा सके। जो नर्सेज हैं, जो औषधि में, जो दवाओं में लगे हुए लोग हैं, जो सरकारें हैं, एक नए नए कानून को बनाकर लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्होंने सब कुछ किया है। The question is, where are the people of God? Are you using your smallest weapon, the stone called prayer? आज सब लोग पूछ रहे हैं कि परमेश्वर के जन कहाँ हैं। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के उन पत्थरों को उठाकर मारने के लिए जो कि आपकी प्रार्थना है? Rise up, people of God. This is your time to finish off the enemy. And just like David said, for who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? और मेरे प्यारे भाइयों, आज उठ खड़े हों और परमेश्वर के शत्रुओं के सामने जोर से बोले, कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार सकता है? Yes, my dear friend, lockdowns are necessary. Time is coming when you will come out of it victorious. देखिए मेरे भाइयों, लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस लॉकडाउन से, इस विपत्ति से विजयी होकर निकलना है। Yes, Corona will also be defeated,
Because the God whom you serve is the King of Kings and the Lord of Lords. और देखिए, हमारा जो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. देखिए, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। If God is for you, who can be against you? Not even Corona. अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका शत्रु हो सकता है? कोरोना भी नहीं। You will be victorious. You will run through a troop. You will live long and declare the works of the Lord. आप एक विजेता हैं, आप एक सेना के रूप में हैं, परमेश्वर के लिए आप एक विजयी हैं। Let me conclude by saying the same verse again. Psalms 118 verse 17. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. अब मैं इसे समाप्त करने की ओर आता हूँ। परमेश्वर के उसी वचन को फिर से कहता हूँ, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन। Noah and his family did not die in that lockdown, but they came out on top of Mount Ararat. और देखिए, उनमें से कोई भी वहां नहीं मरा, लेकिन वो सब लोग अरारात की पहाड़ी पर आ गए। Yes, in the 40-day lockdown that happened between the Philistines and the Israelites at the border, David came out victorious. देखिए, वहां पर 40 दिन 40 रात पलिश्ती और Jonah, from that 3-day lockdown in the belly of that fish, he came out victorious. Jonah successfully came out of the 3-day lockdown from the belly of the fish. देखिए, योना जो 3 दिन तक मछली के पेट में था, वो सफलतापूर्वक उस पेट से बाहर निकल आया, बिल्कुल उस लॉकडाउन के अंदर से। Lazarus was in lockdown for 4 days in that tomb, and Jesus said, Lazarus, come forth, and he came out living from that 4-day lockdown. और देखिए, लाजर जो मुर्दा था, जो कब्र में था, वो 4 दिन उस मौत के लॉकडाउन में था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, लाजर बाहर आ, वो जिंदा होकर उस लॉकडाउन से निकल आया। Jesus Christ, he was in that lockdown in the tomb for 3 days. On the 3rd day, he broke the Roman imperial seals and came out resurrected from that lockdown. कि यीशु मसीह जो 3 दिन तक उस मृत्यु की कब्र में थे, उन्होंने उन रोमी शासकों की सीलों को, उनकी छापों को तोड़कर उस मृत्यु के लॉकडाउन से वो बाहर आ गए, पुनरुत्थानित होकर। My dear friend, similarly, in this lockdown, you will not perish, but you will prosper, because God has plans for you. It is not to harm you, but to prosper you. देखिए मेरे भाइयों, आप जो इस लॉकडाउन में हो, आप नाश नहीं होंगे, लेकिन आप संपन्न होंगे, क्योंकि परमेश्वर है जो आपको इस लॉकडाउन में संपन्न करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया।